आज हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे बेस्ड ऑन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें से मैं कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूँ। एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 4.17 है। फर्स्ट देखिए, मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहा हूँ और उसके जो पॉइंट्स है इसको नोट कर दूंगा। ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 80 centimeter long is railed in a horizontal circle at the constant speed. If the stone makes 14 revolution in 25 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? जैसे स्टोन है वो किसी धागे में बांध करके हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमाया जा रहा है। और धागे की जो लेंथ है एल वो है 80 सेंटीमीटर। ठीक है। और वो 14 रिवॉल्यूशंस को कंप्लीट कर रहा है कितने सेकंड में? इन टी इक्वल टू 25 सेकंड। ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इन शॉर्ट हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करिए, क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर का काम तो यही एल कर लेगा। ठीक है। अब ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा का फॉर्मूला याद करिए। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन टी। ठीक है। एन दिया है, टी दिया है, ओमेगा निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन टी इक्वल टू 2 पाई 14। पाई की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। 2 × 22/7 इंटू 14/25। ठीक है। 88/25 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। नाउ ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। आर मीन्स 80 सेंटीमीटर मीन्स 0.8 मीटर। So 0.8 into 88/25 into 88/25. Do the complete multiplication and you will get approximately 9.9 meter per second square. And what will be direction of the acceleration? It will be along radius and acts towards the center. Okay, so this is the first numerical. Now go to the second.
Next question is NCERT 5.21. See, a stone of mass 0.25 kg tied to the end of a string in a horizontal plane is railed around in a circular radius of 1 meter. यानी कि मास दिया हुआ है 0.25 kg. रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ दिया हुआ है r इक्वल टू 1 मीटर. with a speed of the 14 revolution per minute. n की वैल्यू 40 और t की वैल्यू 1 मिनट. What is the tension in the string? टेंशन कैलकुलेट करना है क्योंकि स्ट्रिंग अगर इस तरीके से रिवॉल्व की जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल है, तो ये रहेगा टेंशन. ठीक है, ये मास है. What is the maximum speed with the which the stone can be railed around if the string can withstand a maximum tension of the 200 न्यूटन? बोला है कि मैक्सिमम स्पीड भी कैलकुलेट कर लीजिए. If the string can withstand by the maximum tension of the 200 न्यूटन, मतलब कि अगर स्ट्रिंग 200 न्यूटन तक मैक्सिमम वो रुक सकता है, उसके बाद टूट जाएगा, तो उस कंडीशन पे आप मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताइए कि कितने मैक्सिमम वेलोसिटी से ये मूव कर सकता है. तो पहले फर्स्ट पार्ट किया जाएगा, फिर सेकंड पार्ट करेंगे. सॉल्यूशन नंबर 1. This tension means it will provide the centripetal force to the motion, so it should be equal to the mv square by r. ओके, इन दोनों के हेल्प से ओमेगा निकाल लेंगे क्या? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n by t, and also v equal to r omega. So put the value m r square omega square by r and 1 power will cancel out to the mr omega square. The tension T will be equal to the mr omega square. Put the values. M is 0.25, r is 1 meter, and omega is 2 pi n upon t whole square. So put the values. N is 40 and the t is 1 minute. 1 minute means 60 seconds. All the values should be put in the SI unit. 0 0 cancel out, 2 3 times equal to 0.25 into
4 pi by 3 into 4 pi by 3. This and this will cancel out because 0.25 का मतलब 1/4 होगा, 1/4 से cancel out हो जाएगा. So it will be 4/9 pi square. Put the values. Pi square will be approximately 9.8. So this value will come totally 4.38 Newton. So this should be the tension in the string. Now second part. V maximum में कैलकुलेट करना है if the 200 Newton tension can be held by the string. So T max equal to M V max square by R. This implies that 200 equal to 0.25 into V maximum square by 1 equal to, it will be 800 na. V maximum square equal to 800 and when you do the calculation means a square root, then approximately it will be equal to 28 meter per second. Okay, so this is the second part of the question. NCERT 4.14. मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं और मीनिंग भी समझाऊंगा. In a harbor, wind is blowing at the speed of 72 kilometer per hour and the flag on the mast of a boat is anchored in the harbored flutter along the northeast direction. If the boat starts moving at the speed of 51 km per hour to the north, what is the direction of the flag on the mast of the boat? देखो यहाँ पे है हार्बर. हार्बर मतलब होता है कि वो जगह जहां पर कि हम लोग किसी बोट को बांध देते हैं ताकि वो हवा से इधर उधर न चला जाए. ठीक है, तो उस जगह पर जो विंड की स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर और वो जो फ्लैग जो उड़ रहा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है. इसका मतलब कि जो विंड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. तो विंड का डायरेक्शन ये है नॉर्थ ईस्ट में. ठीक है, कितना है W लिख देते हैं VW. वैसे दिया हुआ 72 किलोमीटर पर आवर, यूज कर लेंगे, फिलहाल मैंने इतना लिख दिया. ठीक है, अब क्वेश्चन है इफ द बोट स्टार्ट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू द नॉर्थ. अगर बोट जो है 51 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ चलना शुरू कर दे तो
क्या होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगा फ्लैग का? वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है। वी डब्ल्यू दे रखा गया है 72 किलोमीटर पर आवर, वी बी दे रखा गया है 51 किलोमीटर पर आवर, और पूछा जा रहा है कि जब बोट चल रही है तो विंड का डायरेक्शन क्या है। वेलोसिटी ऑफ विंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, यही कैलकुलेट करना है आपको। तो क्या होगा ये होगा वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, यही होगा ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, यही तरीका होगा ना। डायरेक्शन पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा है क्या? सिर्फ डायरेक्शन की बात किया, मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं किया है, ठीक है। तो पहले तो वी डब्ल्यू और माइनस वी बी हम लोग ग्राफ से समझ लें कि कैसा होगा। ये माइनस वी बी हो गया, इन दोनों को ऐड करना है ना, वी डब्ल्यू और माइनस वी बी को, तो ये हो गया माइनस वी बी। ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर यहाँ बनाते हैं हम लोग राइट एंगल, सॉरी पैरेललोग्राम। ठीक है, और इस पैरेललोग्राम का जो डायरेक्शन होता है, डायगोनल का जो डायरेक्शन होता है, यही डायरेक्शन आपको रिजल्टेंट का डायरेक्शन देता है। ये रिजल्टेंट हो गया। तो हमें ये जो ब्लू वाला जो मैंने ड्रॉ किया, यही रिजल्टेंट है आपका, और इसी का डायरेक्शन हमें पता लगाना है। चलिए इससे मान लेते हैं कि यहां से ये बीटा एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। अल्फा मान लें क्या? अल्फा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में आप अल्फा करके ही डिराइव किए थे। मान लेते हैं कि वी डब्ल्यू से ये अल्फा एंगल पर है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, ठीक। थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाली तो 45 हो जाएगी, बता रहा हूं मैं। ये तो नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 हो गया, और ये 90, मिला देंगे तो 45 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 135। तो मैं यहाँ लिख भी दूँ थीटा की वैल्यू 135 डिग्री। सिर्फ डायरेक्शन की बात किया तो डायरेक्शन चलिए कैलकुलेट कर लिया जाए। क्या होता है, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, यानी कि माइनस वी बी साइन थीटा
अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है ना, तो वी डब्ल्यू प्लस सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पर, बना दो। कॉस थीटा यही होता है फॉर्मूला, पुट कर दीजिए वैल्यूज को। मैग्नीट्यूड लिखना है तो नेगेटिव साइन को भूल जाइए। 51 साइन 135 अपॉन 72 प्लस 51 कॉस 135। साइन 135 की वैल्यू के लिए आप उसको 90 प्लस थीटा लिख दीजिए, तो 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका कॉस 45 डिग्री। और ये कॉस 135 कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। छोटा सा कैलकुलेशन है, 45 का 1/√2 2 माइनस 51/√2 51/72√2 माइनस 51 अपॉन √2 आएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दे करके ये बचेगा। सो कैलकुलेट करिए, 51 अपॉन 72 इंटू 1.414 माइनस 51। सो टोटल कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 51 अपॉन 50.8 10 अल्फा इक्वल टू, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसका मतलब 10 अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 51/50.8। 10 इनवर्स निकालिए इसका 10 इनवर्स निकालेंगे आप तो अप्रोक्सीमेटली 45.11 डिग्री आएगा, मतलब लगभग 45 डिग्री। ठीक है, लगभग 45 डिग्री आएगा। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।